everyone, how are you all? I hope you all are safe, healthy, and happy. For today, I have planned that we'll be covering section number 191. The notes which I'm going to use are from the Institute's website, and in case you do not have the module with you, you can refer to the description box below for the PDF format notes. Okay, so if you're new to my channel, we have already covered a lot of sections before of chapter 1, chapter 3, and one section from chapter 2. Rest sections from chapter 2 would be covered in the upcoming days, and for those videos and those playlists, you can refer to the description box only. I have mentioned the playlist link in the description box. Also, I have uploaded one SFM video, SFM derivatives chapter videos. In case you want to see them, you can check the description box below. Okay, so without wasting any further time, let's start with section number 191. This is given on page number 3.67. okay, I hope you have opened the page number. Let's start. Payment to director for loss of office etc. in connection with transfer of undertaking, property or shares. If you remember in the last video, and in case you have not seen it, you can see that video also. In the last video, we covered section 202. Right. In 202, we studied compensation for loss of office to the MD, WTD and manager. Right. If you remember that. Now in this section, payment to director is for loss of office etc. in connection with transfer of undertaking, प्रॉपर्टी और शेयर्स. जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, शेयर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अंडरटेकिंग ट्रांसफ़र हो रही है, उसकी वजह से डायरेक्टर का ऑफिस लूज़ हो जाता है, तो उस केस में जो पेमेंट की जाती है उसको डील करता है सेक्शन 191. ओके, सेक्शन 191 ऑफ द एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज and it contains the provisions which regulate the payment to the directors for loss of office etc. in connection with transfer of undertaking, property or shares by a company. These provisions are discussed as under. No compensation except after specific disclosures and after approval of payment proposal by the members. So इसकी heading ने ही काफ़ी कुछ बता दिया. क्या क्या कि आप compensation पे नहीं कर सकते unless and until आपने इस बात का स्पेसिफिक डिस्क्लोजर कर दिया है, प्लस यू हैव टेकन द अप्रूवल फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी टू पे सच compensation. So both are required. Disclosure, specific disclosure is also required, and the approval of the members is also required regarding this payment proposal. Right. So section 191 subsection 1 enumerates happening of certain specific events in relation to a company and also states inter alia whether or not any director of that company shall receive compensation etc. on happening of such events. तो events बताए हुए हैं कि कौन से event में मिलेगा नहीं मिलेगा compensation, तो कुछ specific events बताए हुए हैं subsection 1 के अंदर. अब events क्या क्या हैं वो पढ़ते हैं एक करके. पहला है ट्रांसफ़र ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ एनी अंडरटेकिंग ऑन प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. कंपनी की अंडरटेकिंग को बेच दिया गया है या किसी प्रॉपर्टी को बेच दिया गया है, तो उस केस में वेकेशन लॉस ऑफ ऑफिस हो गया है, या फिर ट्रांसफ़र किया गया है to any person of all or any of the shares in a company being transfer resulting from. तो शेयर्स ट्रांसफ़र की वजह से लॉस ऑफ ऑफिस हुआ है. अब ट्रांसफ़र किस वजह से हुआ है, तो पहला ट्रांसफ़र हुआ है बिकॉज ऑफ एन ऑफ़र मेड टू द जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स के पास कोई ऑफ़र आया था इस चीज़ के लिए कि शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ, या फिर ऑफ़र आया गया है या दिया गया है बाय सम अदर बॉडी कॉरपोरेट. किस वजह से, किस लिए, विद अ व्यू टू कंपनी बिकमिंग अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच बॉडी कॉरपोरेट या फिर सब्सिडरी कंपनी ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी. किसी बॉडी कॉरपोरेट ने हमारी कंपनी को क्या दिया है, एक ऑफ़र दिया है, उसमें वो हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज़ कर रहे हैं, और हमारी कंपनी को जब वो शेयर्स परचेज़ करेंगे तो उसकी वजह से हमारी कंपनी उस बॉडी कॉरपोरेट की सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी, या फिर होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी बन जाएगी, उसकी बॉडी कॉरपोरेट की होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी बन जाएगी, या फिर बॉडी कॉरपोरेट की ही सब्सिडरी बन जाएगी. ठीक है, तो या तो सिस्टर कंसर्न्स हो जाएंगी या फिर
बॉडी कॉरपोरेट की सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। तो इस चीज़ का ऑफ़र आया गया है, ठीक है। तीसरा है एन ऑफ़र मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एन इंडिविजुअल with a view to his obtaining the right to exercise or control the exercise of not less than 1/3 of the total voting power at any general meeting of the company। सेकेंड पॉइंट में किसी बॉडी कॉरपोरेट ने ऑफ़र किया था। थर्ड पॉइंट के अंदर इंडिविजुअल ने ऑफ़र किया है। क्या किस लिए किया है, उसका व्यू क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसका ऑब्जेक्टिव है कि उसको राइट टू एक्सरसाइज चाहिए, कंट्रोल चाहिए, कितने तक, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ एट द जनरल मीटिंग का कंट्रोल चाहिए। उसको सारे वोटिंग पावर्स में से एटलीस्ट 1/3 कंट्रोल चाहिए शेयर होल्डर्स की मीटिंग में, ठीक है। तो उस इंडिविजुअल ने ऑफ़र किया है जिस वजह से शेयर्स ट्रांसफ़र किए गए हैं। चौथा पॉइंट है एनी अदर ऑफर विच इज़ कंडीशनल ऑन एक्सेप्टेंस टू अ गिवन एक्सटेंट। कोई और ऑफ़र आया है जो कि कंडीशनल ऑन एक्सेप्टेंस है किस एक्सटेंट तक। तो इन सभी केसेस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा प्लस अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं डिस्क्लोजर ऑफ पर्टिकुलर्स एंड अप्रूवल इन द जनरल मीटिंग की। सो इन कनेक्शन विद अबव इवेंट्स जो हमने अभी जस्ट पढ़े, अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट रिसीव एनी पेमेंट अनलेस particulars as may be prescribed with respect to the payment proposed to be made by the transferee or person, including the amount thereof, have been disclosed to the members of the company। अमाउंट के साथ साथ आपको ये बताना पड़ेगा कि किस चीज़ का हो रहा है, क्या इवेंट है, क्या मतलब कुछ डिटेल्स मांगी हैं। तो कुछ डिटेल्स मांगी हुई हैं वो आपको डिस्क्लोज़ करनी पड़ेगी टू द मेंबर्स अलॉन्ग विद द अमाउंट जितना आप कॉम्पनसेशन पे करने का सोच रहे हो। इसके अलावा कोई भी डायरेक्टर रिसीव नहीं कर सकता कोई भी पेमेंट। and the proposal has been approved by the company in the general meeting। सिर्फ डिस्क्लोजर से काम नहीं चलेगा, डिस्क्लोजर के साथ साथ अप्रूवल भी मिलना चाहिए, तभी आप पेमेंट कर पाओगे। सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ऑफ डिस्क्लोजर एंड अप्रूवल एज मैंशनड अबव, मतलब ये तो कंप्लाई करनी है। अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी मे रिसीव पेमेंट बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस या फिर एज अ कंसिडरेशन फॉर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस, या फिर इसी कनेक्शन में कुछ मिल रहा है इन कनेक्शन विद सच लॉस, रिटायरमेंट फ्रॉम सच कंपनी, या फिर किसी ट्रांसफरी, जिस भी ट्रांसफरी मतलब जिस भी अंडरटेकिंग को, जिस भी पर्सन को आपने ये अपनी अंडरटेकिंग या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है, वो पर्सन आपको या फिर फ्रॉम दी ट्रांसफरीज ऑफ शेयर्स, जिनको शेयर्स दिए हैं वो लोग दे रहे हैं, या फिर एनी अदर पर्सन नॉट बीइंग सच कंपनी, इस कंपनी को छोड़कर कोई और पर्सन है जो आपको इस चीज़ के लिए पेमेंट दे रहा है। According to Rule 17(1) of the Companies Meetings of Board and its Powers Rules 2014, the specified particulars which need to be disclosed to the members of the company for approving the proposal by passing a resolution at a general meeting are as under। So क्या क्या particulars आपको disclose करने पड़ेंगे जिससे कि आपको अप्रूवल मिल जाए फ्रॉम द जनरल मीटिंग। तो क्या क्या है, पहला है नेम ऑफ़ द डायरेक्टर, किसको दे रहे हो, अमाउंट प्रपोज्ड टू बी पेड कितना है, इवेंट क्या हुआ है जिसकी वजह से कॉम्पनसेशन पे करने की रिक्वायरमेंट आ रही है, बोर्ड मीटिंग की डेट कौन सी है जिस दिन इस पेमेंट को रेकमेंड किया गया था, क्योंकि जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेने से पहले बोर्ड मीटिंग तो हुई होगी, बेसिस क्या है इस अमाउंट को कैलकुलेट करने का, रीज़न या जस्टिफिकेशन दो पेमेंट की, मैनर बताओ कि पेमेंट कैश में करने वाले हो या अदरवाइज़ करने वाले हो, और अगर अदरवाइज़ कर रहे हो तो कैसे, सोर्सेज ऑफ पेमेंट क्या हैं, या फिर कोई भी अगर रेलेवेंट पर्टिकुलर्स लगते हैं बोर्ड को कि वो भी उसको बताने चाहिए तो वो भी बताने होंगे। पेमेंट लॉफुल इफ़ विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स, विद इन द लिमिट्स हैं तो वो पेमेंट्स लॉफुल मानी जाएंगी। सेक्शन 191 सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है, एनी पेमेंट मेड बाय अ कंपनी टू MD WTD मैनेजर ऑफ द कंपनी बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस or as consideration for retirement from office or in connection with loss or retirement shall be considered as lawful
if it is subject to the limits or priorities as prescribed in Rule 17(2). तो आपको याद होगा हमने जब कल ही कवर किया है सेक्शन 202 जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि लिमिट क्या होती है, टेन्योर कितना देना, कितने टेन्योर के लिए। तो बेसिकली उसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि जितना उसका अभी टेन्योर बचा था उसमें वो जितना रेम्यूनरेशन कमा लेता उतना कॉम्पनसेशन देंगे, बट उसमें कुछ 3 years की लिमिट लगी हुई थी। इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू डोंट, जस्ट गो बैक एंड सी दैट वीडियो वंस अगेन और रीड द सेक्शन वंस अगेन योरसेल्फ, ओके। बट उसको ज़रूर पढ़ना, छोड़ना तो भी लिंक मेंशन्ड है इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। सो any payment made by the company to MD WTD manager by way of compensation for loss of office or as a consideration for retirement from office or in connection with such loss or retirement shall be considered as lawful, अगर वो उस लिमिट के अंदर है जो रूल 17(2) के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है। अकॉर्डिंग टू रूल 17(2) such payment to be lawful shall not exceed the limit as set out under section 202। क्लियर है यहाँ तक? तो उतनी लिमिट तक है तो वो क्या हो जाएगा, वो लॉफुल माना जाएगा। नो कॉम्पनसेशन पेबल अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। अकॉर्डिंग टू रूल 17(3) नो कॉम्पनसेशन शैल बी पेड to the MD or WTD or manager of the company for the loss of office or as a consideration for retirement from office except notice pay and statutory payments according to the terms of their appointment, इनको छोड़कर, और इन कनेक्शन विद सच लॉस और रिटायरमेंट अगर। तो जो नोटिस पे है या स्टैट्यूटरी पेमेंट्स करनी है वो तो कर सकते हो, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें जो रिस्ट्रिक्शन है वो कॉम्पनसेशन के ऊपर है, जो आप MD WTD मैनेजर को पे करते हो तो उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। क्या? अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट में है रीपेमेंट ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन, तो उस केस में क्या आप MD WTD या फिर मैनेजर को क्या देना चाहोगे, कॉम्पनसेशन देना चाहोगे? नहीं। तो अगर आपने इनका डिफ़ॉल्ट कर रखा है, इन लोगों का डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, तो आप नहीं पे कर पाओगे। तो पहले इनका डिफ़ॉल्ट क्लियर करो, इनको पेमेंट करो, फिर जाके आप MD WTD और मैनेजर को कॉम्पनसेशन दे सकते हो। कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है इन रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स या फिर पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन। सेकेंड, कंपनी इज इन डिफ़ॉल्ट इन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन। रिडेम्पशन करनी थी डिबेंचर्स की, नहीं की, इंटरेस्ट देना था, नहीं दिया, तो ये सब आपके डिफ़ॉल्ट्स माने जाएंगे, आप कॉम्पनसेशन नहीं दे सकते। Third, the company is in default in repayment of any liability, secured or unsecured, payable to any bank, public financial institution या फिर any other financial institution। कंपनी ने कोई भी डिफ़ॉल्ट किया है इन रीपेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी, चाहे फिर वो सिक्योर्ड है चाहे फिर वो अनसिक्योर्ड है, विच इज़ पेबल टू एनी बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आप पेमेंट नहीं कर सकते ऑफ द कॉम्पनसेशन। नेक्स्ट, company is in default of payment of any dues towards income tax, VAT, excise duty, service tax, other tax duty by whatever name called, payable to the central government or any state government, statutory authority or local authority, other than in cases where the company has disputed the liability to pay such dues। तो अगर आपको इसको बड़ा बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपको कारो का क्लॉज याद आया होगा इसको पढ़ के, तो करेक्ट है कि कारो में हमारे पास एक क्लॉज होता है जिसके अंदर ये प्रोविज़न होता है। तो ये स्टैट्यूटरी ड्यूज़ होते हैं हमारे, अगर आपने इनमें डिफ़ॉल्ट किया हुआ है तो आप कंपनी के MD WTD मैनेजर को क्या नहीं पे कर सकते, कॉम्पनसेशन पे नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये वाले अमाउंट्स डिस्प्यूटेड चल रहे हैं तो उस केस में देयर इज़ नो इशू। डिस्प्यूटेड है तो आप कॉम्पनसेशन पे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट में अदर दैन इन केसेस वेयर द कंपनी हैज़ डिस्प्यूटेड द लायबिलिटी टू पे सच ड्यूज़। क्योंकि डिस्प्यूटेड है तो ऐसा हो सकता है ना, केस तो काफ़ी टाइम तक चलता रहेगा, तो क्या तब तक आप कॉम्पनसेशन पे नहीं करोगे? नहीं, आप पे कर सकते हो। नेक्स्ट, देर आर आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज़ टू द एम्प्लॉयज़। पहले गवर्नमेंट का ऊपर वाले पॉइंट में गवर्नमेंट के ड्यूज़ नहीं पे किए थे, यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ को स्टैट्यूटरी ड्यूज़ नहीं पे किए हैं, वर्कमैन को स्टैट्यूटरी ड्यूज़ नहीं पे किए हैं, विच हैव नॉट बीन पेड बाय द कंपनी अदर दैन इन केसेस वेयर द कंपनी हैज़ डिस्प्यूटेड द लायबिलिटी। डिस्प्यूटेड लायबिलिटी है तो कोई बात नहीं, उसके अलावा डिस्प्यूटेड नहीं थी फिर भी पे नहीं करी तो नहीं कर सकते कॉम्पनसेशन पे। Last point, the company has not paid dividend on preference shares or not redeemed the preference shares on the due date। डिविडेंड देना था प्रेफरेंस शेयर्स पे, नहीं दिया, रिडेम्पशन करना था वो भी नहीं किया,
तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन नहीं दे सकते। तो हमने टोटल 6 पॉइंट पढ़े हैं, एक फटाफट से रिवाइज करते हैं। पहला, पब्लिक डिपॉजिट्स में डिफ़ॉल्ट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में डिफ़ॉल्ट, मैं उसके इंटरेस्ट नहीं ले रही हूँ, आप ऑब्वियसली आप खुद से ऐड कर दोगे बाद में जब आप लिखोगे, इट इज़ जस्ट अ डिवीजन कि आपको सिर्फ पॉइंट्स याद रह जाएँ, ठीक है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या क्या लिखा है वो आपको याद रहता है जनरली। प्रॉब्लम क्या थी, हमें पॉइंट्स नहीं याद रहते, तो हम एक बार फटाफट से क्विकली पॉइंट्स याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, आपने पब्लिक डिपॉजिट्स में डिफ़ॉल्ट किया। सेकंड में आपने डिबेंचर्स का रिडेम्पशन नहीं किया। तीसरे में आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रीपेमेंट नहीं किया। चौथे में स्टैट्यूटरी ड्यूज़ नहीं पे किए टू द गवर्नमेंट। फिफ्थ में स्टैट्यूटरी ड्यूज़ नहीं पे किए टू द एम्प्लॉयज़। और सिक्स्थ में यू हैव नॉट पेड दी डिविडेंड ऑन दी प्रेफरेंस शेयर्स। तो पहला पब्लिक डिपॉजिट्स, सेकंड डिबेंचर्स, थर्ड आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाली लाइबिलिटी, फोर्थ स्टैट्यूटरी ड्यूज़ टुवर्ड्स गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी ड्यूज़ टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़, एंड सिक्स्थ इज़ preference shares. I hope you are clear with this and you will be able to recall it when you revise it. ठीक है, easily आपको याद हो जाएगा। Next, payment proposal cannot be taken as approved if no quorum present. If you remember, हमने chapter 1 के अंदर rotation by retirement रिटायरमेंट बाय रोटेशन पढ़ा था, है ना। तो हमने रिटायरमेंट बाय रोटेशन पढ़ा था चैप्टर 1 के अंदर। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जिस मीटिंग के अंदर कोई भी डायरेक्टर रिटायर हो रहा होता है उसकी जगह पर किसी नए डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है, राइट। अब अगर नए डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट या फिर उसी को रीअपॉइंट किया जाता है, राइट। लेकिन अगर मीटिंग के अंदर कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया और मीटिंग एडजर्न्ड हुई बिकॉज ऑफ कोरम एंड या बिकॉज ऑफ कोई भी डिसीजन नहीं आ रहा, कोरम नहीं बल्कि कोई डिसीजन नहीं आ पा रहा, इसलिए आपकी मीटिंग एडजर्न हो गई और नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ, बट सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस। तो क्या होता था कि आपका डीम्ड रीअपॉइंटमेंट मान लिया जाता था, ठीक है। तो रिटायरिंग डायरेक्टर यूज टू गेट रीअपॉइंटेड, वो डीमिंग प्रोविजन लगा हुआ था सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस कि अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में फॉल कर गया तो ऑब्वियसली डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, अदरवाइज डीम्ड रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा अगर एडजॉर्न्ड मीटिंग के अंदर भी कोई डिसीजन निकल के नहीं आता, राइट। बट यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर पेमेंट प्रपोजल को आप अप्रूव्ड नहीं मान सकते, डीम्ड अप्रूवल मत मान लेना अगर कोरम प्रेजेंट ना होने की वजह से मीटिंग या फिर मीटिंग एडजॉर्न हुई और एडजॉर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं हुआ, इस वजह से आपका कोई भी प्रपोजल अप्रूव नहीं हो पाया, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया, तो इसलिए डीम्ड अप्रूवल मत मान लेना, ऐसा सेक्शन के अंदर ही लिख दिया। So payment proposal cannot be taken as approved if no quorum present. Section 191 subsection 3. If the payment is not approved for want of quorum either in a meeting or an adjourned meeting में भी नहीं हुआ, adjourned meeting में भी नहीं हुआ, the proposal shall not be deemed to have been approved. उसको deemed approval मत मान लेना, okay. Next, receipt of payment in contravention of section 191 subsection 1. Company receives payment of any amount in contravention of section 191 subsection 1 या फिर the proposed payment is made before it is approved in the meeting. The amounts received by the director shall be deemed to have been received by him in trust for the company. In other words, the director shall not own such amount but keep it as trustee of the company. अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, सपोज सेक्शन 191 सबसेक्शन 1 के हिसाब से जो पेमेंट होनी थी उससे ज़्यादा हो गई या कुछ भी गलत तरीके से पे हो गया, नहीं करना था पे कर दिया, या फिर अप्रूवल नहीं आया था फिर भी पेमेंट पहले कर दी, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो डायरेक्टर के पास कॉम्पनसेशन गया है ना, वो ऐसा माना जाएगा कि डायरेक्टर के पास कंपनी का ही पैसा है इन द एज अ ट्रस्टी, क्योंकि आपको याद होगा चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि डायरेक्टर्स क्या होते हैं, कंपनी के ट्रस्टी जैसे होते हैं। तो अगर वो जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, एसेट्स होते हैं, कैश होता है, ये सब होता कंपनी का है, लेकिन डायरेक्टर्स इसको इन्वेस्ट करने के तरीके, यूज़ कैसे करना है वो सब सोचते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो गया, इन दी कैपेसिटी ऑफ ट्रस्ट ऐसा कर पाते हैं, एज अ ट्रस्टी ऑफ द कंपनी वो ऐसा कर पाते हैं। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर कोई ज़्यादा पेमेंट हो गई या बिना अप्रूवल के या जो भी सेक्शन 191 सबसेक्शन 1 में लिखा है उसके हिसाब से नहीं है, उसके कॉन्ट्रावेंशन में कुछ भी पेमेंट होती है तो वो माना जाएगा, अगर डायरेक्टर को दे दिया गया है तो वो एज अ ट्रस्टी उसको होल्ड करके रखेगा। कंपनी अगर वापस मांगती है तो उसको वापस करना पड़ेगा, वो कंपनी का ही पैसा होगा जब तक सेक्शन 191 सबसेक्शन 1 कंप्लाई नहीं हो जाता पूरी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, पेनल्टी की बात करते हैं अब। अगर
नॉन कंप्लायंस हुआ सेक्शन 191 का तो पेनल्टी क्या लगेगी। जो भी कंपनी का डायरेक्टर है जिसने भी सेक्शन 191 का कंप्लायंस नहीं करा तो उसके ऊपर 1,00,000 रुपये की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अप टू 1,00,000 नहीं लिखा, सीधा सीधा 1,00,000 रुपये लग जाएगी पेनल्टी। ठीक है। Next, no effect on disclosures. Section 191 shall not be taken to prejudice the operation of any law requiring disclosure to be made with respect to any payment received under Section 191 or such other like payments made to the director. In other words, if required by any law, the disclosures regarding any payment of compensation shall be made. तो अगर कहीं लॉ किसी और लॉ में भी लिखा हुआ है कि कुछ डिस्क्लोजर्स करने की रिक्वायरमेंट है तो आप वो करोगे। ऐसा नहीं है कि डिस्क्लोजर्स यही वाले करने हैं जो इस सेक्शन में मेंशन्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी और लॉ के तहत कुछ और लिखा हुआ है कुछ तो आपको वो भी डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं नोट पर। नोट में लिखा हुआ है ड्यू टू नोटिफाइंग ऑफ सेक्शन 247 सबसेक्शन 1 विद इफेक्ट फ्रॉम 18th October 2017 द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज एटसेट्रा विल बी कंडक्टेड बाय अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर as appointed by the audit committee or in its absence by the board of directors. Before this, it was being conducted by an independent merchant banker registered with SEBI or an independent chartered accountant in practice having minimum experience of 10 years. तो पहले कौन करता था? पहले इंडिपेंडेंट मर्चेंट बैंकर या फिर इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कर लेता था क्या? वैल्यूएशन वाला काम। ठीक है। बट नोटिफिकेशन के थ्रू ये क्लैरिफाई हो गया, ये नोटिफाई कर दिया गया कि अब सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही वैल्यूएशन करेगा किस किस चीज़ की, स्टॉक्स की, शेयर्स की, डिबेंचर्स की, सिक्योरिटीज़ की, और भी कोई आइटम्स हैं जिनकी वैल्यूएशन होनी है तो दैट विल बी डन बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर ओनली. It was used to be conducted by the independent merchant banker which was registered with the SEBI or the independent chartered accountant in practice जिसके पास minimum experience हुआ करता था 10 years का. But now it will be done by the registered valuer only. ठीक है. So this is all about section number 191. We have covered it fully. If you have any doubts, if you have any problem with the any point, you can let me know about that in the comment section below. And if you have any suggestions which will be helpful for us to improve the quality of the videos or the content quality, then that will be really appreciated. And you can mention the same in the comment section and I will try to incorporate all those changes in the upcoming videos. And if you like the video, do give it a big thumbs up. And if you feel that sharing this will help somebody else also, do share it with your friends. And in case you haven't subscribed to my channel till now, do consider subscribing if you really want to enjoy more such videos with me. And also hit the bell icon because whenever I'll be uploading any video, you'll get the notification for it. So thank you for watching the video, and this is all for today. I'll see you in the next video. Bye bye.